and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss general financial rules related to the topic defalcation and losses. It's a very important topic. In this part, I will discuss 10 MCQs, and it is the latest one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get up-to-date video, and definitely it means my videos would be helpful for you, and different departmental exams and different government exams. It is very important one, general financial rule. So my friends, please subscribe my channel, and till end you see the video. Definitely you can get complete information related to the topic defalcation and losses. It is very important one. And you see my contact WhatsApp number. It is 832-778-2034, and you can join my Telegram channel also. Link is t.me/BAPI2034, so that you can up to date my videos in my Telegram channel. So in this part I will discuss, basically defalcation and losses. Defalcation and losses when suppose any public money or public revenue, any fraud is there, any misappropriation of funds is there, or any embezzlement of money or any fraud is there. So it means what is the procedure and what is the guideline. It means related to the amount also, and in some cases also certain type of losses cannot be reported to the higher authority, and if any loss is there, then definitely it means in what way actually the inquiry can be conducted, and report actually submit to whom, everything I will discuss, and only 10 MCQs I will discuss with explanation also. I will discuss everything properly. So question number 1, you see, any loss or shortage of public money or departmental revenue or receipts, stamps, stores or other property held by or on behalf of government shall be immediately reported by the subordinate authority concerned to the. आप देखिए GFR रूल 33 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल 33 रिलेटेड टू द डिफाल्केशन एंड लॉसेस. Suppose if there is any loss in public money, any shortage of public money, any irregularities in departmental revenue receipt, or any misappropriation in store, or any type of actually losses for the government, then subordinate authority report to whom? जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो किसको रिपोर्ट करेगा, यही क्वेश्चन है. यदि कोई भी डिपार्टमेंटल रेवेन्यू लॉस होता है, कोई पब्लिक मनी में लॉस होता है कि शॉर्टेज होता है, ठीक है, कोई स्टोर में कोई मिस अप्रोप्रिएशन है और कोई इरेगुलरिटीज है, तो इस केस में जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो किसको रिपोर्ट करेगा. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है. नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, ऑल द अबव. आप उसको याद रखिए, रूल 33 सबसेक्शन 1 में ये क्लियरली मेंशन है. यदि कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू शॉर्टेज होता है, कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू में इरेगुलरिटीज होता है, कोई पब्लिक मनी में शॉर्टेज होता है कि इरेगुलरिटीज होता है, कोई स्टोर में मिस अप्रोप्रिएशन होता है, तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मस्ट रिपोर्ट टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी. ये तो है, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा. ऑडिट ऑफिसर है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर, उसको रिपोर्ट करेगा, और जो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर है डिपार्टमेंट का, उसको रिपोर्ट करेगा. तो ये आंसर जो है ऑल द अबव है. कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन होता है, रूल 33 सबसेक्शन 1 में आप देख लीजिए, यू सी द रूल 33 सबसेक्शन 1. सो इफ दैट टाइप ऑफ शॉर्टेज और दैट टाइप ऑफ सपोज मिस अप्रोप्रिएशन or any type of irregularities happen related to the public money, so the subordinate authority must report to next higher authority or statutory audit officer or principal accounts officer of the concerned department. तो all the above आंसर है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. तो ये रूल 33 जो डिफॉल्केशन एंड लॉसेस है उसमें सबसेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन है.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अप टू हाउ मच लॉस ऑफ पब्लिक मनी देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी कंसर्न। सपोज कितना अमाउंट का लॉस होगा, कितना अमाउंट का शॉर्टेज होगा, ठीक है, तो उस केस में हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अप टू हाउ मच अमाउंट, if any loss is there or any shortage is there, then it should not be reported to the higher authority. There is no need to report to the higher authority. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। रूल 33 सबसेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन है, नॉट एक्सीडिंग ₹10,000, ये आंसर है। तो इसमें क्या है, अप टू 10,000, अप टू ₹10,000 यदि कोई पब्लिक मनी लॉस होता है, कोई शॉर्टेज होता है और इसी अमाउंट के अंदर यदि इरेगुलरिटीज होता है, देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी। तो इस केस में क्या है, जो भी कंसर्न एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल है इस लॉस के लिए, तो वो उससे रिकवरी कर दिया जाएगा उसमें। क्योंकि आप जानते हो, सपोज ये हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, मीन्स रिपोर्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी करके रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को चला जाएगा और विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन हायर अथॉरिटी को चला जाता है। तो जो भी एम्प्लॉई इट मीन्स इरेस्पॉन्सिबिलिटी से ये हुआ, ओके, ड्यू टू द इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉई एक्चुअली इट इज हैपेंड, एंड इफ इट इज प्रूव्ड देन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड। ठीक है, तो हायर अथॉरिटी को जाने से क्या है, इंक्वायरी होगा और इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी होकर रिपोर्ट जाएगा। ठीक है, सो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट दे देगा और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जाएगा। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको डिस्पोज करेगा। यदि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिस्पोज नहीं करता है तो वो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अप टू ₹10,000 शॉर्टेज होता है कि लॉस होता है तो हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करने से क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी किया जाएगा, तो फिर हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट जाएगा। तो अल्टीमेटली वो रिपोर्ट चला जाएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्चुअली वो डिस्पोज करेगा कि क्या किया जाएगा, क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, कि जो भी मैटर है डिस्पोज होगा। यदि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको डिस्पोज नहीं कर पाता है, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, यदि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको डिस्पोज नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली अगेन it is shunted to, it is switch over to Ministry of Finance, Ministry of Finance। ठीक है, तो अप टू ₹10,000 यदि लॉस होता है, शॉर्टेज होता है, तब वो हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू GFR, केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस इरेगुलरिटीज shall be brought to the notice of। सीरियस इरेगुलरिटीज आ गया। ठीक है, तो केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस इरेगुलरिटीज शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। यदि सीरियस इरेगुलरिटीज होता है तो वो किसको नोटिस किया जाएगा? तो आप देख लीजिए, रूल 33 सबसेक्शन 2, इसमें क्लियरली मेंशन है, यदि सीरियस इरेगुलरिटीज होता है, सपोज रिलेटेड टू द पब्लिक मनी, पब्लिक रेवेन्यू, तो इस केस में डेफिनेटली कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तो इन्फॉर्म किया जाएगा। उससे पहले जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री है, फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। तो आप एक को लीजिए, आइदर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, ये दोनों से एक लेना है आपको। और द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, उसको इंफॉर्म करना ही करना है, ये कंपल्सरी है। ये जो मैं राउंड लगाई, ये कंपल्सरी है, इनको रिपोर्ट करना है, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इनको कंपल्सरी। और ये आइदर और, ये जो दोनों है, इट मींस ओके, इसमें आइदर कोई भी एक को।
ठीक है, यदि सीरियस इरेगुलरिटीज एक्चुअली ब्रॉट टू द नोटिस, इफ एनी सीरियस इरेगुलरिटीज आर देयर, then definitely brought to the notice of either financial advisor of the ministry or department concerned or chief accounting authority of the ministry or department concerned, ये दोनों में से एक। और कंपल्सरी कौन है, मैंडेटरी क्या है ना, ये नोटिस जाएगा ही जाएगा, द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो अभी ऑप्शन हो गया, तो इसमें आइदर 1 और 2 एंड 3 आंसर, आइदर 1 और 2 एंड 3, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी सीरियस इरेगुलरिटीज होता है, सपोज पब्लिक मनी, रिलेटेड टू पब्लिक मनी, देन जो फाइनेंशियल एडवाइजर है डिपार्टमेंट का, कि कंसर्न मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया जाएगा, और यदि फाइनेंशियल एडवाइजर को हम नहीं करेंगे, उनके जगह में हम चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को करेंगे, मगर कंपल्सरी है द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को किया जाएगा। तो आइदर 1 और 2 एंड 3। और ये जो है सीरियस इरेगुलरिटीज के ऊपर रूल 33 सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, और इसमें ये जो दोनों केस है, जैसे कोई लॉस होता है, कोई सपोज कोई फ्रॉड होता है, कोई मनी एम्बेजलमेंट होता है, कोई मनी मिस अप्रोप्रिएशन होता है, पब्लिक मनी, तो ये दोनों केस में इंक्वायरी होगा। ठीक है, आप देखिए रूल 33 सबसेक्शन 3 में है, प्रॉपर इंक्वायरी होगा, प्रॉपर इंक्वायरी होने के बाद रिपोर्ट चला जाएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। रिपोर्ट किसको जाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जाएगा। तो ये मैटर डिस्पोज करेगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, वो एक्चुअली डिसाइड करेंगे। सपोज कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, ठीक है, वो ही डिस्पोज करेंगे। सपोज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, तो देन द केस एक्चुअली बेसिकली ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये रूल 33 सबसेक्शन 3 बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। ऑल मैटेरियल लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आज ए रिजल्ट ऑफ सस्पेक्टेड आ गया, यहां पर सस्पेक्ट आ गया, सस्पेक्टेड फायर, थेफ्ट, फ्रॉड एटसेट्रा above the value of dash shall be invariably reported to the police for investigation as early as possible। सपोज कोई मैटेरियल लॉस होता है, कोई सपोज कोई कंसर्न डिपार्टमेंट और कोई कंसर्न डिपार्टमेंट का जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है, उसमें कोई मैटेरियल लॉस होता है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, कैसे ना, सस्पेक्टेड फायर, कि सपोज सस्पेक्टेड थेफ्ट, की सस्पेक्टेड फ्रॉड। ओके, तो किस टाइम में एक्चुअली पुलिस को रिपोर्ट किया जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा है। कोई ऐसा सपोज जैसे जो मैटेरियल लॉस होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, ये सोचा जाता है कि सस्पेक्टेड फायर में हो गया, कि सस्पेक्टेड थेफ्ट है, कि कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है, वो क्लियर नहीं है मगर सस्पेक्टेड है। तो सस्पेक्टेड बात आता है मींस, तो अमाउंट, कितना अमाउंट होगा जो पुलिस को रिपोर्ट किया जाएगा। तो यहां पर आप याद कीजिए, ग्रेटर देन ₹50,000। सपोज ये जो वैल्यू है मोर देन ₹50,000। सपोज कोई मैटेरियल लॉस होता है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है, तो उसका वैल्यू जो है मोर देन ₹50,000। जैसे हम सस्पेक्ट करते हैं कोई, सपोज द इट मीन्स कंसर्न अथॉरिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिस, suppose it means suspect that due to fire actually it is happened, कि due to fraud it is happened, कि due to theft it is happened, but the value of the property, value of the loss of the property is greater than ₹50,000, इतना से ज्यादा। अच्छा, इस केस में एक्चुअली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को चला जाएगा, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया जाएगा, और जो भी डिपार्टमेंट का लोग है वो पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, और वहां पर एक्चुअली वो रिजल्ट आएगा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगा। सपोज इसमें लेस देन ₹50,000 होता है, इस केस में क्या है, पुलिस को नहीं जाएगा। सपोज कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है सस्पेक्ट रिलेटेड केस में, लेस देन 50,000 गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लॉस होता है, कोई जो गवर्नमेंट का मटेरियल लॉस होता है, तो इस केस में एक्चुअली पुलिस को सस्पेक्ट तो है, लेस देन 50,000 सस्पेक्ट, मगर पुलिस को नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या है, जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा, और वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकता है।
मगर पुलिस को नहीं जाएगा। मगर आपको याद रखना है, यदि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लॉस होता है और हम सस्पेक्ट करते हैं कि फ्रॉड के वजह से है, कि थेफ्ट के वजह से है, कि फायर के वजह से है, और वैल्यू जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ उसका वैल्यू मोर देन 50,000 है, तब पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट शुड कोऑपरेट टू द पुलिस। तो अभी ये जो आंसर है, आंसर इज डी। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जो रूल है, ये जो थेफ्ट केस में है, आप देख लीजिए रूल 34 देख लीजिए। ये बेसिकली ये रूल 34 में है, जो सस्पेक्ट जो है रूल 34 है। ओके, एनी लॉस इन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और एनी डिस्ट्रॉय इन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू सस्पेक्टेड फायर, थेफ्ट एंड फ्रॉड। मगर सस्पेक्ट रिलेटेड वर्ड है, तो वो रूल 34 में क्लियरली मेंशन है, यदि वैल्यू ऑफ द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन ₹50,000, देन इट मस्ट रिपोर्ट टू द पुलिस। देन पुलिस एक्चुअली इन्वेस्टिगेट द मैटर and then the report actually sent to the head of the department of the concerned department। ठीक है, ये रूल 34 आपको याद रखिए सस्पेक्ट रिलेटेड मैटर में। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अकॉर्डिंग टू GFR, इसमें जो स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट वन। आजकल सो नाउअडेज एक्चुअली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम देखेंगे, 3 स्टेटमेंट्स गिवन, सो जस्ट यू डिटेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू GFR, स्टेटमेंट 1, और लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग ₹50,000 सच एज बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशंस और अदर वर्क्स caused by fire, flood, cyclone, earthquake or any other natural cause shall be reported at once by the subordinate authority concerned to the government through the usual channel। तो ये ठीक है, आपको याद रखना है। आप देख लीजिए रूल 35। रूल 35 में क्लियरली मेंशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग है, कोई सपोज कम्युनिकेशन लाइन है, कोई सपोज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई एनी अदर वर्क है जो शिफ्ट नहीं होगा, जो मूवेबल नहीं है। सो यदि इस तरीके का इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होता है और उसका वैल्यू ग्रेटर देन ₹50,000 होता है, तब डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा प्रॉपर चैनल से। डायरेक्टली कैसे प्रॉपर चैनल से ना, उसको बेसिकली प्रॉपरली इंक्वायरी किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे बिल्डिंग है, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, चाहे एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि उसमें सपोज कोई डिस्ट्रक्शन होता है, चाहे फ्लड है कि अर्थक्वेक है कि फायर है, कोई एनी अदर नेचुरल कॉज, ये दिया है देखिए, कॉज्ड बाय फायर, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी अदर नेचुरल कॉज। बट जो लॉस होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ग्रेटर देन ₹50,000 होगा, और यहां पर याद रखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस केस में प्रॉपर चैनल में गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रॉपर इंक्वायरी होगा, जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उसको प्रॉपरली इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी रिपोर्ट प्रॉपर चैनल से गवर्नमेंट को जाएगा। और इसमें भी याद रखिए, उसका एक कॉपी ऑडिट ऑफिसर के पास जाएगा, ऑडिट ऑफिसर के पास जाएगा, एंड PAO, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर के पास भी कॉपी जाएगा साइमल्टेनियसली। तो मोर देन ₹50,000 है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस है, चाहे कोई नेचुरल कॉज से और सपोज फायर से, कि सपोज फ्लड, साइक्लोन और एनी अदर नेचुरल कॉज, मगर इतना लॉस हो रहा है, तो प्रॉपर चैनल में रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाएगा। और साइमल्टेनियसली ऑल्सो वन कॉपी ऑफ द रिपोर्ट मस्ट, इट मीन्स रिपोर्ट टू द ऑडिट ऑफिसर एंड ऑल्सो मस्ट सेंड टू द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ये रूल 35। अच्छा, ग्रेटर देन ₹50,000। अच्छा, यदि ग्रेटर देन सपोज लेस देन ₹50,000 है, सपोज कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होता है लेस देन ₹50,000, सपोज कोई नेचुरल कॉज से, कि कॉज्ड बाय फायर, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी अदर नेचुरल कॉज, तो इस केस में डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ये था फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, ऑल लॉस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग ₹50,000
such as buildings, communications, or other works caused by fire, flood, cyclone, earthquake, or any other natural cause shall be reported at once by the subordinate authority concerned to the गवर्नमेंट थ्रू द यूजुअल चैनल। नहीं, ये गलत है। मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होता है और ग्रेटर देन ₹50,000 है तो इस केस में डायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर इंक्वायरी करके सबऑर्डिनेट अथॉरिटी प्रॉपर चैनल से गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, मगर मूवेबल प्रॉपर्टी केस में नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली इनकरेक्ट वन। ऑल अदर लॉसेस शुड बी इमीडिएटली ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, ये भी करेक्ट है। सपोज लेस देन ₹50,000, लेस देन ₹50,000 लॉस हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसमें यदि लॉस होता है तो यहां पर डायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। प्रॉपर इंक्वायरी के बाद नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट भेज देगा। मगर ग्रेटर देन ₹50,000 है, कोई नेचुरल कॉज से सपोज गवर्नमेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, चाहे इसमें फ्रॉड है, मिस अप्रोप्रिएशन है, इरेगुलरिटीज है, और कोई नेचुरल कॉज से सपोज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस होता है और उसका वैल्यू मोर देन ₹50,000 है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। और एनी अदर लॉस है तो वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को जाएगा। तो इसमें जो है वो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो स्टेटमेंट 2 ओनली 2 इज इनकरेक्ट वन। ठीक है, और ये रिलेटेड में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है रूल 35, देखिए जीएफआर रूल 35 में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ ऑल लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग ₹50,000 such as buildings, communications, or other works caused by fire, flood, cyclone, earthquake, or any other natural cause, after a full inquiry as to the cause and the extent of the loss has been made, the detailed report should be sent by the subordinate authority concerned to। तो इसमें अभी मैं बताया जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि उसका वैल्यू ग्रेटर देन ₹50K है, 50,000 है, और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होता है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, चाहे कोई परमानेंट कम्युनिकेशन लाइन है, सपोज उसमें लॉस होता है और उसका वैल्यू मोर देन 50,000 होगा, तो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी गवर्नमेंट को प्रॉपर चैनल में इन्फॉर्म करेगा। तो ये तो है फर्स्ट वन करेक्ट वन। और उसी में बोला था गवर्नमेंट को तो इन्फॉर्म करेगा और उसके साथ साइमल्टेनियसली वन कॉपी ऑफ द रिपोर्ट मस्ट सेंड टू द ऑडिट ऑफिसर एंड वन कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑल्सो सेंड टू द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, पीएओ। तो ये तीनों आ जाएगा, गवर्नमेंट को तो जाएगा प्रॉपर चैनल से, और एक कॉपी डिटेल्ड रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाएगा। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ग्रेटर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है मोर देन 50,000 है, उसका लॉस होता है और इंक्वायरी रिपोर्ट होगा, कंप्लीट रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाएगा, और उसका एक कॉपी ऑडिट ऑफिसर को जाएगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट का, और एक कॉपी पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट का। तो ये तीनों जो है बेसिकली इसमें आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों को गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगा और एक एक कॉपी रिपोर्ट का एक एक कॉपी ऑडिट ऑफिसर को और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को जाएगा, वही पीएओ, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को जाएगा। आप देख लीजिए, ये भी क्लियरली मेंशन है, वही दे दिया रूल 36, देखिए जीएफआर रूल 36 में क्लियरली मेंशन है कि यदि इस तरीका का होता है किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, रिपोर्ट किसको भेजा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू जीएफआर व्हिच ऑफ द लॉसेस ऑफ पब्लिक मनी और रेवेन्यू नीड नॉट बी रिपोर्टेड। तो किस तरीके का लॉस होगा जो पब्लिक मनी में, किस तरीके का इरेगुलरिटीज होगा जो रिपोर्ट नहीं होगा, उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, वही पूछा है। व्हिच ऑफ द लॉसेस ऑफ पब्लिक मनी और रेवेन्यू नीड नॉट बी रिपोर्टेड, तो ये भी क्लियरली मेंशन है। आप देख लीजिए रूल 33 सबसेक्शन 1, देखिए जीएफआर रूल का रूल 33 सबसेक्शन 1 में क्लियरली मेंशन है। स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, मिस्टेक्स इन असेसमेंट व्हिच आर डिस्कवर्ड टू लेट टू परमिट ए सप्लीमेंट्री क्लेम बीइंग मेड। सपोज कोई लेट में कुछ असेसमेंट हुआ और उसमें डिटेक्ट हुआ कि इस पब्लिक मनी में इरेगुलरिटी है, लेट में पता चला, इन एक्चुअली डिलेड मैनर एक्चुअली
suppose we have detected that it means through assessment, proper assessment, financial assessment, we have detected that yes, loss is there. तो ऑलरेडी लेट एक्चुअली, इन डिलेड मैनर एक्चुअली वी हैव डिटेक्टेड, तो उसको रिकवरी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का चीज को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी नेक्स्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेट में पता चला, लेट में जब असेस किया गया तब पता चला कि लॉस है। तो इस तरीके का रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, और उसको जो भी कंसर्न पर्सन है वो हैंडल करता है फाइनेंस को, और उसके वजह से एक्चुअली इस तरीके का असेसमेंट में एक्चुअली गवर्नमेंट को लॉस हुआ, उससे ही रिकवरी किया जाएगा। और एक है पेटी लॉसेस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹10,000 में बताया था, यदि कोई पेटी लॉस होता है और नॉट एक्सीडिंग अप टू ₹10,000 लॉस होता है तो वो रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो भी कंसर्न एम्प्लॉय के वजह से लॉस हुआ है उससे रिकवरी कर दिया जाएगा। अप टू 10,000 रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट मींस एक्चुअली सबऑर्डिनेट अथॉरिटी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देता है। रिपोर्ट करने से क्या इंक्वायरी होगा, फिर सब नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट जाएगा, और जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा, और उस केस में मोस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा। ओके, माइनर पेनल्टी लग सकता है और मेजर पेनल्टी लग सकता है, ठीक है। तो ये दोनों केस में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप रूल 33 सबसेक्शन 1 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स, यहां पर 2 स्टेटमेंट्स है, इनकरेक्ट हम देखेंगे। अगेन इनकरेक्ट आ गया, तो दोनों स्टेटमेंट में कोई इनकरेक्ट है हम डिटेक्ट करेंगे। ऑल केसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ गवर्नमेंट मनी अराइजिंग फ्रॉम एरोनियस और इरेगुलर इश्यू ऑफ चेक्स और इरेगुलर अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट्स विल बी रिपोर्टेड टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज जो चेक इश्यू हो रहा है उसमें इनकरेक्टली चेक इश्यू हो रहा है, इरेगुलर इश्यू ऑफ चेक, इरेगुलर इश्यू ऑफ चेक, इनकरेक्ट वे इश्यू ऑफ चेक, चेक इश्यू हो रहा है इनकरेक्ट वे में, उसमें एरोनियस है, उसमें रॉन्ग है, और जो जब मनी गवर्नमेंट रिलीज करता है और डिपार्टमेंट को आता है वो भी सही तरीके से लेजर में सही तरीके से मेंटेन नहीं होता है, उसमें भी इरेगुलरिटीज है टू मेंटेन द अकाउंट। तो इस तरीके का केस में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को रिपोर्ट जाएगा मस्ट। सपोज आप यहां पर याद रखिए, ये क्लियरली दे दिया है कि इस तरीके का केस में सपोज कोई इश्यू, जो चेक इश्यू होता है वो इरेगुलर इश्यू ऑफ चेक्स, उसमें एरोनियस इश्यू ऑफ चेक्स, ठीक है, और इरेगुलर अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट्स, जो रिसिप्ट होता है वो ठीक से मेंटेन नहीं होता है। तो इस तरीके का केस में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप रूल देख लीजिए 33 सबसेक्शन 7 में क्लियरली मेंशन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, सेकंड द सर्कमस्टांसेस, और आप सर्कमस्टांस भी देंगे जे किस वजह से एक्चुअली ये लॉस हुआ, क्योंकि चेक सही तरीके से इश्यू नहीं हो रहा है मींस वो गवर्नमेंट का लॉस हुआ, सही तरीके से अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट का लॉस हुआ। तो कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसको तो रिपोर्ट किया जाएगा, और उसके साथ सर्कमस्टांस भी दिया जाएगा कि एक्चुअली इसी के वजह से लॉस है। और सपोज कोई ऐसा कोई गाइडलाइंस है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो गाइडलाइन देता है, सपोज उसमें गाइडलाइन में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, जो गाइडलाइन में सपोज कुछ ऐसा गाइडलाइन है उसके वजह से एक्चुअली चेक इश्यू हो गया, चेक इश्यू हो रहा है इरेगुलर मैनर, कि जो रिसिप्ट है, जो मनी रिसिप्ट है वो सही तरीके से अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, मगर वो एक्चुअली गाइडलाइन में गलत है, तो ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन को वो करेक्ट कर सकता है कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, कल उसका जो गाइडलाइन वो इश्यू करेगा वो उसमें ठीक कर सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, मगर इनकरेक्ट पूछा है तो नॉन, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि कोई इरेगुलर इश्यू ऑफ चेक्स और इरेगुलर मैनर एक्चुअली अकाउंट इज मेंटेनिंग, then in this case actually the must report to the controller general of accounts, और उसमें आपको जस्टिफाई भी करना है, सर्कमस्टांस देना है कि ड्यू टू दीज सर्कमस्टांसेस एक्चुअली लॉस हैपेंड। और उसमें हो सकता है सपोज कंसर्न डिपार्टमेंट बोल सकता है कि जो कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ अकाउंट्स जो गाइडलाइन की जो पैरामीटर्स की जो
बेसिकली जो सर्कुलर इशू किया है उसके वजह से एक्चुअली ये गलती हुआ, तो इसको सुधार कर सकता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये रूल 33 सबसेक्शन 7 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पब्लिक पीएफएमएस जो है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डैश। अभी पीएफएमएस मींस डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप रूल जो जनरल फाइनेंशियल रूल 87 देखिए डीबीटी के ऊपर है, और पीएफएमएस जो है रूल 86 में है। रूल 86 में पीएफएमएस क्या है, डायरेक्टली मनी ट्रांसफर होगा, जो बेनिफिशियरी है उसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं रहेगा, जो भी मनी पेमेंट होगा डायरेक्ट होगा। ओके, जो बेनिफिशियरी है उसका अकाउंट नंबर, उसका ये सब लिंक रहेगा और डायरेक्टली मनी ट्रांसफर होगा। और पीएफएमएस के वजह से क्या है, जो फ्लो ऑफ मनी हम चेक कर पाएंगे कि किस किस टाइम में कितना मनी रिलीज हुआ और कितना अनस्पेंड मनी है, कितना बचा है, बैलेंस है, क्या टाइमली मनी पेमेंट हो रहा है कि नहीं, वो डिटेल्स आ जाएगा उसमें। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है रूल 87 में क्लियरली मेंशन है, डायरेक्टली मनी ट्रांसफर हो जाएगा बेनिफिशियरी को। अभी देखिए, आप जितना गवर्नमेंट अभी जो भी मनी ट्रांसफर के, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप देखिए सभी मनी ट्रांसफर हो रहा है पीएफएमएस से। आप देखिए जो गवर्नमेंट फंड जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के, मिजरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जा रहा है, चाहे मनरेगा हो, चाहे और कोई भी फंड हो, कोई भी गवर्नमेंट सपोज असिस्ट कर रहा है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, वो डीबीटी में जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वही डीबीटी रिलेटेड टू पीएफएमएस। और कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखिए बेनिफिशियरी को जो पेमेंट किया जा रहा है वो पीएफएमएस के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो ये सिस्टम को कौन लाया? क्या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स? नो। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू? नो। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट? नो। कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ अकाउंट्स ये लाया। ये कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको याद रखना है, ये जो पीएफएमएस सिस्टम को, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्टली मनी ट्रांसफर हो रहा है बेनिफिशियरी को डीबीटी के माध्यम से, उसको, ये सिस्टम को कौन रेगुलेट कर रहा है ना? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट ऑफ लॉसेस इज डिफाइंड इन व्हिच रूल ऑफ जीएफआर। ये तो बहुत इजी है, आपको मैं बोल चुका हूं, रूल 33 डिफाल्केशन एंड लॉसेस रिलेटेड में अभी मैं डिस्कस किया। ठीक है, रूल 33 जो है डिफाल्केशन एंड लॉसेस, रूल 86 है पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, रूल 87 डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो डायरेक्टली मनी ट्रांसफर हो रहा है बेनिफिशियरी को, रूल 33 यही आंसर है हमारा, डिफाल्केशन एंड लॉसेस। रूल 30 जो है इसमें रूल 30 को भी मैं बता देता हूं, लैप्स ऑफ सैंक्शन ये है। ओके, इसको भी याद रखिए, लैप्स ऑफ सैंक्शन, कोई सैंक्शन होना चाहिए, उसमें कुछ लैप्स आ गया, ठीक टाइम में सैंक्शन नहीं हुआ, मनी को रिलीज नहीं किया गया, तो यहां पर जो लॉस का मैटर है वो रूल 33 में क्लियरली मेंशन है। ये 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक डिफाल्केशन एंड लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो रूल 33 टू रूल 38 कवर करता है। ठीक है, उसको आप में 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया, तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एग्जाम में। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।